Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla, and I am back with the new video in the series UPSC Master Series Simplified, and today's episode is Indian Space Policy 2023. Department of Space has released the latest Indian space policy in April 2023, and it intends to increase the private sector participation as much as possible, and to decide how will we proceed through ISRO and other prominent institution in the next 15-20 years. What will be the missions launched, what will be our approach, how will we increase our standing in the space sector all over the world. Okay, so let's discuss in detail. Also there is this good news with us ki we have launched Chandrayaan 3 in the space, and we were the first in the world to detect water on the planet, on the satellite, that is moon. चंदा मामा पे हम लेके गए हैं अभी अपना सैटेलाइट, और सबसे जब हम लास्ट टाइम लेके गए थे तो सबसे पहले पानी भी हमने ही डिटेक्ट किया था. ओके, सो अभी रिसेंटली 14 जुलाई को ही रिलीज किया था हमने वो सैटेलाइट, एंड इट इज़ अबाउट टू रीच द मून, एंड एवरी इंडियन विद द सेम विगर एंड हैप्पीनेस watched the whole event live, just like we watched India-Pakistan cricket match together. So to celebrate that particular moment, and along with how to capitalize, how to enhance it further, enhance our standing further in the global space arena, government has approved this particular policy, Indian Space Policy 2023. What is its emphasis? It emphasizes on increased private sector participation in the space domain. वर्ल्ड के जितने भी टॉप कंट्रीज हैं इन द स्पेस सेक्टर, दे आर so successful just because of the involvement of the active involvement and proactive involvement of the private sector. हर चीज government led नहीं चल सकती for the long term, and so this is what is the intent of the government in power right now. They want to increase the private sector participation as much as possible. They want to open this particular sector, space sector. Definitely it is a strategic sector, but at the same time we need to bring in more innovations, more such things. Private sector participation is pertinent. ठीक है, so here space domain में private sector का participation enhance करना है. That is the most focus area, that is the area of focus. It offers opportunities for growth in the space sector, but supportive legislation and clear rules are essential. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कैसे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस. ठीक है, तो इसमें ही हम डिटेल में जाएंगे. वी विल सी ऑल द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, व्हाट इट इंटेंड्स टू डू इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. ठीक है, इसके साथ साथ वी विल डिस्कस व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग सच अ पॉलिसी. इसके पहले वी विल सी व्हाट इज़ द ब्रीफ बैकग्राउंड, कैसे हमारी इंडियन स्पेस अरीना इवॉल्व करी है. इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो सी द करंट statistics with respect to the space sector, where are we currently. Okay, and then in the last portion of the lecture we will see some important missions by the ISRO, some prelims perspective से important news and information, जिसमें we will discuss important startups in the private sector from space domain in India, as well as the important missions by the ISRO which have been already completed and which are proposed in the next 2-3 years. So let's see. So here we were discussing the why in news section. This particular policy is unique in 2-3-4 terms. ठीक है, this information will help you to answer any prelims question related to this policy. ठीक है, so it is first ever comprehensive space policy on outlining the direction of India's space program, कि where we will be in the next 15-20 years. तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली इंडिया ने इस पॉलिसी में आउटलाइन किया है कि where will we go, where in which sector do we have to work. ठीक है, नेक्स्ट, delineating specific roles for major stakeholders, whoever is involved in the space sector arena, what will be their role. This has been clear cut, this has been made very clear cut defined. Okay, so this is the second major thing which has happened for the first time in this policy. Next thing, expanding India's participation in the global space arena.
इस पे भी बहुत इलेबोरेटली डिटेल में बात करी गई है बाय क्लियरली डिलिनिएटिंग द contribution each branch of ISRO and the Department of Space will play. Okay, next is facilitating technology transfer. How it is a big challenge because why are not we excelling in this field that much? That's because of the lack of technology with us. ठीक है, तो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को फैसिलिटेट करना है? फॉस्टरिंग इनोवेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पहले होती आई है बट इट्स लाइक पहले अगर ऐसा था कि 80-20, 80 पब्लिक सेक्टर 20 प्राइवेट सेक्टर. नाउ वी आर ट्राइंग टू पुश इट टूवर्ड्स एज मच एज पॉसिबल टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रीक्वेंटली हम लोग एम्प्लॉय करेंगे. सो दिस इज द दीज आर द 4 थिंग्स जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी न्यू पॉलिसी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट the current stats. What is the current status of India's space sector? ठीक है, there are some statistics which I have given to all of you. You can directly use these in answers if any question comes regarding India's space sector and advancements in India's space sector with respect to India's space policy. ठीक है, तो जो भी current status है वो आपको बताना जरूरी है. So how much is what is the data for कितना बड़ा सेक्टर ये हो गया है ग्लोबल लेवल पे? तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज वैल्यूड एट $360 billion. ओके, दैट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज फिगर. इंडिया शेयर अभी कितना है इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में? 2%, ओनली 2%. नेक्स्ट, टोटल स्पेस इकोनॉमी इन इंडिया इज ऑफ $9.6 billion. ठीक है, और जबकि वर्ल्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2% है, मतलब हम एक्सपोर्ट के नाम पे वी आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. नेक्स्ट, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड स्पेस इकोनॉमी इज 2.6%. ठीक है, ऑलमोस्ट 2.2 या 2.6 बोल दो आप. कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इसरो ब्रिंग्स जस्ट बाय स्पेंडिंग दैट सो लेस वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द 0.5% टू द जीडीपी, द स्पेस सेक्टर, इंडिया स्पेस सेक्टर. And what have we done so far? By using PSLV, we have launched 400 plus 350 plus foreign satellites by using our PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Next, 3.6% of the world's space tech companies are present in India currently. Okay, so 3.6% वर्ल्ड की कंपनीज स्पेस के एरिया में हमारे यहाँ हैं. What is the private sector's role? It is increasing, very important, and it is increasing day by day. ISRO ranks 6th among the space agencies with exceptional success rate. ठीक है, सबसे नंबर ऑफ फेलियर्स अगर हम किसी भी स्पेस एजेंसी का गिने तो इंडिया हैज फेल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मोस्ट सक्सेसफुल. ठीक है, दिस डेटा यू कैन ऑल्सो रेफर. 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर, 9% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर बाय 2030. अगर अच्छे से हमने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया तो एस्टिमेट है कि वी कैन रीच टिल 9%. दैट विल बी अ ह्यूज जंप, 4 times. ओके, मोर देन 4 times. करंट शेयर इज हाईएस्ट है वर्ल्ड में यूएस का 40%, नेक्स्ट यूके का 7% एंड इंडिया इज एट 2%. एंड स्पेस इकोनॉमी का जो डेटा है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको. सम मोर इंपॉर्टेंट डेटा यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो हेयर प्राइवेट स्पेस कंपनीज इंडिया में अभी 400 प्लस हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ इट इंडिया रैंक्स 5th इन द नंबर ऑफ कंपनीज. ओके, 3.6 बताया था मैंने, 3.6% कंपनीज हमारे यहाँ हैं वर्ल्ड की. ठीक है, एंड व्हाट इज द एम? एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम. तो ये एम रख के हम आगे बढ़ रहे हैं अभी. होपफुली वी गेट टू we get successful in such endeavors. Department of Space recently supported Agnikul Cosmos, a Chennai-based space tech startup with a flight termination system. ठीक है, फ्लाइट को कैसे टर्मिनेट करते हैं, जब हम उड़ के गए और वापस आए, ठीक है, तो कैसे उसको टर्मिनेट करना है. दैट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय अ अग्निकुल कॉस्मोस, दैट स्पेस बेस्ड स्टार्टअप, ओके, फ्रॉम चेन्नई. नेक्स्ट, we are globally recognized for cost effective satellite building. Very cheap satellites we make at a very cheaper rate, but the quality satellites we make. And
लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स, ठीक है, क्योंकि हम सबसे कम रेट पे पूरे वर्ल्ड में इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट मेक्स अस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट, एडवोकेट्स, वी हैव ऑलवेज बीन द एडवोकेट्स ऑफ पीसफुल एंड सिविलियन यूज ऑफ आउटर स्पेस, अपोजिंग स्पेस वेपनाइजेशन. तो हमारा जो सबसे बड़ी बात है, हमारा इंटेंट है वो पीसफुल है. दैट्स व्हाई वी हैव गुड चांसेस एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द space sector in the coming areas, coming years. Now let's talk about some of the drawbacks of the earlier space policies. कहाँ पे वो लैग कर रही थी, and then how we came towards the new policy by taking lessons from these particular policies. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं first satellite communication policy. It was launched in 1997 with FDI guidelines for the satellite industry were eased at that time, but again it failed to generate enthusiasm because it was not very appealing to the private sector of the foreign companies. It led to hosting TV signals from on foreign satellites. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने किया क्या कि जो फॉरेन सैटेलाइट्स होते हैं उसमें होस्टिंग हमने स्टार्ट कर दी सैटेलाइट का यूज़ करके, तो उससे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं. तो रिजल्टेड इन एन एनुअल आउटफ्लो ऑफ $500 million. तो उल्टा जब ये पॉलिसी आई तो उसकी वजह से उल्टा हमारा $500 million बाहर जाने लगा, क्योंकि हम हमारे चैनल्स जो थे एफडीआई बढ़ने से हमने फॉरेन सैटेलाइट्स में किराए पे लेना शुरू कर दिया स्पेक्ट्रम स्पेस. एंड जो हमारा अगर खुद का सैटेलाइट होता उस टाइम तो वी वुड हैव बीन एबल टू अर्न दिस मच मनी, और ये बाहर हम जाने ही नहीं देते, ठीक है. तो दिस वाज द लॉस आफ्टर दिस पॉलिसी. Second important policy came remote sensing data policy in 2001. ठीक है, it was amended several times and finally it got replaced by the latest ones, that is National Geospatial Policy. Here Indian users including security and defense agencies spend nearly $1 billion annually on foreign earth observational data. Okay, so because of the lack of a proper policy हम अभी भी फॉरेन सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ देयर इज ह्यूज डर्थ ऑफ लैक ऑफ कंपनीज जो ऐसी सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करें इंडिया में. वी import so much of such services, we spend a lot on such services जो हमारे इंडिया में ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, and we can save a lot of money. ठीक है. Another one's Space Activities Bill was introduced in 2017 to streamline the affairs of the space, but it lapsed in 2019 because due to various reasons, political reasons, ये आगे नहीं बढ़ पाया. ठीक है. It was expected to be replaced with the new bill. 2021 में एक नया बिल आने वाला था, but again no new bill came, and but only a new policy statement was released from the government side कि we will launch it in soon, but उसके आगे कुछ हुआ नहीं. So it is still pending with the government. Next, need for India space policy. Why this policy was very much needed. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि we spend and wasting a lot of money on foreign satellites and foreign services, foreign companies, just because we don't have a clear cut defined space policies, और private sector का participation बहुत कम है because of the lack of several things जो अभी हम डिस्कस करेंगे. क्या चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बढ़ने से रोकती हैं. सो नीड फॉर स्पेस इंडिया स्पेस पॉलिसी, क्या ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, क्लियर पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द स्पेस सेक्टर अफेक्टिवली. ठीक है, अगर हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ढंग से नहीं बनाएंगे तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस सेक्टर में, दे विल नॉट बी श्योर, दे विल बी लाइक कि आज हम आए पैसा लगाएं. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सेक्टर. ठीक है, आज हम आए पैसा लगाएं एंड गवर्नमेंट कल कुछ और नई पॉलिसी ले आए, तो इट विल बी वेरी बिजनेस परस्पेक्टिव से इट विल बी वेरी हार्मफुल. सो दैट्स व्हाई दे आर हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो जितना क्लियर कट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लेके आएंगे, दैट्स व्हाई वी नीड इंडियन स्पेस पॉलिसी. नेक्स्ट इज अनटैप्ड पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का स्पेस सेक्टर का बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है जो हमने अभी तक टैप नहीं किया है. अगर एक क्लियर कट पॉलिसी होगी तभी प्राइवेट सेक्टर इंडिया में डेवलप हो पाएगा. इट इज़ काइंड ऑफ
यू नो वेरी नेसेंट स्टेज में है, अभी अभी हम सोचना शुरू कर रहे हैं कि हमें भी स्पेस में कुछ करना है या हम कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. You know, we have huge amount of investment to be made. We are just 2% of the global share, global economic share, जो अभी $360 billion की इंडस्ट्री है, you know, $1 trillion हो जाने वाली है कुछ समय में. So, you know, why should not be we be proactive in tapping the potential of the future, ठीक है. So that's why हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और टेक्निकल एडवांसमेंट के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी मच नीडेड, ठीक है. दैट्स वाई we have a lot of potential that needs tapping. That's why we need this particular policy. Third important point is national security and growth. So, you know, we have to balance between our national security things and growth also, ठीक है. और you know, इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स आते जा रहे हैं. इट इज़ बीइंग सेड कि फ्यूचर के वॉर्स, यू नो, वेपन्स के वॉर नहीं होंगे, स्पेस वॉर्स होंगे, एंड दिस साइबर थिंग विल हैपन, साइबर वॉर्स होगा. तो इफ वी आर यू नो नॉट इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, स्पेस सेक्टर, वी आर लैगिंग बिहाइंड आर एनिमीज, ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनिमीज होंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एंड ग्रोथ. एंड वी हैव टेकन वन ऑफ दीज इनिशिएटिव्स by establishing in space to safeguard our these national security interests and promote innovation as much as possible in the space sector, ठीक है. Next important point is कि why we need this particular policy is increasing global competitiveness, ठीक है. अभी इंडियन की स्पेस कंपनीज हैं, ठीक है. इंडिया ने, इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वी कैन डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज एट अ वेरी लो कॉस्ट, ठीक है. आपने काफ़ी सारी ऐसे फिगर्स सुने होंगे, जैसे अभी लेटेस्ट फिगर है कि भाई आदि पुरुष से में जितना पैसा लगा, आदि पुरुष मूवी बनाने में जितना पैसा लगा, उसके आधे पैसे में वी हैव लॉन्च्ड चंद्रयान 3, ठीक है. ऐसे ही चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था तो बात हो रही थी कि भाई ग्रेविटी मूवी आई थी, उससे भी कम पैसे में वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट चंद्रयान मिशन, मून मिशन. सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटीज, बट यू नो टू इंक्रीज इट फर्दर, कि हम ग्लोबल लेवल पे उसको सस्टेन कर पाएँ और उससे अर्न कर पाएँ, यू नो, ग्लोबली हम कॉम्पिटिटिव हो पाएँ. It is very much needed कि we should have a clear-cut policy within our you know system. Next is economic implications, guiding investment and managing economic risk in the capital-intensive space sector, ठीक है. अगर एक clear-cut, well-defined policy नहीं होगी तो investor invest करने से इसमें चूकेगा, because it is a very strategic sector, ठीक है. कौन सी चीज़ यू नो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में आ रही है, कौन सी चीज़ स्ट्रैटेजिक है, कौन सा किसका यूज़ हम ओपन स्पेस में कर सकते हैं. इट इज़ वेरी, समटाइम्स देयर इज़ वेरी थिन लाइन, ठीक है. तो अगर आप क्लियर कट पॉलिसी नहीं रखोगे तो कल को किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया एंड देन गवर्नमेंट कम्स अप विद अ न्यू ऑर्डर कि दिस इज बैंड, ऑल ऑफ दिस इज बैंड, तो वेयर विल इट गो, ठीक है. बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देगा, कहाँ जाएगा वो कंपनी वाला. सो दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक implication has to be addressed by clearly defining the sector policies, ठीक है. So all these important points gives way to this particular policy. Now we'll discuss the important highlights of this particular policy, ठीक है. So here 4 entities facilitating private sector participation. Directly मैंने इन 4 entities जो you know इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस ने मिलकर बनाया है, एंड इनका क्लियर कट डिफाइन किया है कि व्हाट रोल दे विल प्ले, ओके. एंड सम ऑफ दीज कंपनीज आर वेरी न्यू, दे हैव बीन चॉक्ड आउट फ्रॉम द इसरो इटसेल्फ. NSIL, इसरो उसकी सब्सिडरी ही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की सब्सिडरी है दिस NSIL. ऑल दीज कंपनीज विल प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. लेट्स स्टार्ट विद इसरो. इसरो का लोगो आपने देखा ही है, अभी तक तो सैटेलाइट लॉन्च कर रही थी, अब रेगुलेट भी करेगी पूरे स्पेस अरीना को, स्पेस सेक्टर को. What will be its role? To focus on R&D, share technologies, and then cutting edge projects. So basically they will act like the vendor, ठीक है, and also the facilitator of the technology. जहाँ पे technology नहीं है, they will do the R&D and then will share the technologies with the respective private sector. You know एक auction हो सकता है technology का, and you know private sector can start capitalizing on that particular technology. What is the role of this in space वाला जो startup है? It will act as the single window agency for authorizing the space activities in India in private sector of space industry, ठीक है.
दिस विल एक्ट एज द सिंगल विंडो फैसिलिटेटर, ठीक है, कि भाई आपको जो भी स्पेस एक्टिविटीज अंडरटेक करनी है इन इंडिया, आई विल हेल्प यू डू सो, आई विल ऑथराइज certain activities, permitted and non-permitted activities. That role will be played by the in-space startup. Next, in-space branch of the space sector. Next, NSIL, that is New Space India Limited. ठीक है, it is also a public sector enterprise under the Department of Space. What will it do? It will commercialize the space technologies and handle operational missions, जो अभी इसरो स्पेसिफिकली करता है. तो जो भी ऑपरेशन रिलेटेड मिशंस होंगे, इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द NSIL, एंड इट विल हार्नेस इंडिया स्पेस पावर कमर्शियली टू स्पीयरहेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द स्पेस प्रोडक्ट्स इन इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग ऑफ द स्पेस प्रोडक्ट्स. तो इंडिया स्पेसिफिक जो भी बनाया जाएगा, उसको कमर्शियलाइज कैसे करना है, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द NSIL, New Space India Limited. And one more objective is to tap the benefits of R&D carried out by the ISRO. भाई जितना अभी तक काम कर लिया, how to capitalize on it, how to market it, all these things will be taken care of by the, it's like the marketing team of ISRO, ठीक है, जो सेपरेटली सारी चीज़ें देखेगी, एक तरह से ई-कॉमर्स बनाएगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करेगा NSIL. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. इट विल इम्प्लीमेंट द स्पेस पॉलिसी. जो भी स्पेस लेटेस्ट पॉलिसी ये आई है, इसको इम्प्लीमेंट करने का और रेगुलेट करने का काम इसका रहेगा. कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एफर्ट्स. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी MOU साइन होने हैं किसी कंट्री के साथ, किसी स्पेस एजेंसी के साथ, ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर एम्पावर्ड फॉर एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज. ऐसी कौन कौन सी चीजें जो परमिट करेगा, कहाँ पे इंडिया स्पेस सेक्टर वांट्स private sectors to participate. First of all, they will be allowed to launch satellites. Next, they will be allowed to develop rockets. Then they will also be allowed to provide communication services. ठीक है, जो भी GPS से related या जो भी बात करना है, सैटेलाइट फोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें अलाउ करेगा. रिमोट सेंसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, अलाउ करेगा प्राइवेट सेक्टर को. छोटी छोटी कंपनीज बनाई जाएंगी. एंड देन नेविगेशन सर्विसेज, जिसमें GPS वगैरह आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, engage in space situational awareness and asteroid resource recovery. ठीक है, तो एस्टेरॉयड रिसोर्सेस एंड उनका कैसे रिकवर करना है और कैसे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस लेके आना है, दिस यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर विल बी एनकरेज टू इन्वेस्ट. नेक्स्ट, एनहेंसिंग इंडिया स्पेस सेक्टर विजन फॉर अ फ्लरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस. कैसे स्पेस सेक्टर में फ्लरिशिंग ऐसा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कमर्शियल प्रेजेंस लेके आए इंडिया, इसरो. ठीक है, इस पे बात करेंगे. नेक्स्ट, ओपन सैटेलाइट डेटा एक्सेस फॉर नॉन सेंसिटिव इमेजेस. जो एरियाज, जो जिन इमेजेस या जो भी सैटेलाइट सर्विसेज जहाँ पे डेटा ऑब्टेन करना है और विच इज़ नॉट सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इनफ, नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से अनइम्पॉर्टेंट ना हो, वो सारा डेटा ओपन सैटेलाइट डेटा एक्सेस दे दिया जाएगा कंपनीज को टू यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस. नेक्स्ट, फोकस ऑन सिविलियन एंड पीसफुल एप्लीकेशंस विद स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट सर्विसेज का यूज कर पाओ टू फैसिलिटेट वेरियस सर्विसेज. ठीक है, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ. दिस इज द विजन, ठीक है, फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर टिल 2032. ठीक है, आई विल रीड आउट इंपॉर्टेंट विजन्स वन बाय वन. फर्स्ट इज ऑथराइजिंग द प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज. सीधी बात है कि डिफरेंट एक्टिविटीज विच वी डिस्कस्ड हियर, सारी चीज़ें अलाउ करना है. नेक्स्ट, प्रमोट इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल आउटरीच. ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको कमर्शियलाइज करना है एंड आउटरीच बढ़ाना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है. स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर. स्ट्रेटेजिकली इट इज़ लाइक अ स्पेस रेस बिटवीन द वेरियस स्पेस एजेंसीज. तो कैसे इस रेस में हमें शामिल होना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, making strategies for such things is also included in this vision. Next is nurturing and facilitating startups to have access to investors. ठीक है, startups तो कई आ गए, 400 plus हैं अभी, but how will they get that capital needed to grow further? Okay, so this will be taken care of by the vision of this strategy of India's space policy. Next, creating conducive ecosystem for private entities. ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना
कि प्राइवेट सेक्टर ओपन हार्ट के साथ, ओपन माइंड के साथ पार्टिसिपेट करे और फ्लरिश भी करे. दैट क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम ऑन ग्राउंड इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग टास्क, जो इसके विजन का पार्ट है. ठीक है. एंड मेन ओवरऑल जो जिसका जिस्ट है दैट इज रिगार्डिंग इंक्रीजिंग इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. फिर इसके बाद इसरो का ट्रांजिशन कैसे हम चेंज कर रहे हैं. हाउ इसरो इज बीइंग इज एक्टिंग एज द फैसिलिटेटर फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ. ठीक है. तो इसरो विल फोकस ऑन R&D एंड विल शेयर एक्सपर्टीज विद द अदर एंटिटीज. जो भी प्राइवेट सेक्टर आएगा, जहां पे भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प रिक्वायर्ड रहेगी, वहां पे इसरो विल कम इन. एंड देन प्राइवेट सेक्टर कैन यूज इसरो फैसिलिटीज एंड परफॉर्म टेलर्ड टास्क फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज. ठीक है. तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जहां भी जो भी रिक्वायरमेंट है, इसरो विल प्रोवाइड ऑल ऑफ इट्स सर्विसेज ऑन ऑन ट्रांसपेरेंट बेसिस, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कैन पार्टिसिपेट एंड डेवलप वेरियस टेक्नोलॉजीज फॉर which are important for the strategic and security agencies. Next, in space role, what in space will do, it will provide authority, it will authorize the space activities for government and non-government entities. It will also promote industry and establishing standards. It will also publish the standards needed for the space sector in India. Next, NSIL क्या करेगा, कमर्शलाइज करेगा, ये हम इस पे बात कर चुके हैं. नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑपरेशनल मिशंस, जो छोटे छोटे मिशंस लॉन्च होंगे अगले 2 साल 3 साल में, NSIL विल टेक केयर ऑफ दोज मिशंस. ठीक है. तो क्लियर कट डिफाइन कर दिया कौन रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है, कौन कमर्शियल रोल प्ले कर रहा है, कौन ऑथराइज करने का काम करेगा, कौन पॉलिसीज बनाएगा, कौन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाएगा. ऑल हैज बीन क्लियरली डिफाइंड इन दिस केस. नेक्स्ट, this term has been introduced from this particular policy, open space policy. What does it mean? It refers to a policy open and transparent participation in space activities, जो promote कर रही है कि transparent way में और open way में allowed to everyone you can participate in the space activities. It encourages collaboration between public and private in space exploration, as well as it wants to foster innovation and then competition and then industry growth while ensuring safety and security. ठीक है. हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना होते हुए दे विल टेक केयर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो एंड फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग ग्रो करें. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. ठीक है. तो पॉलिसी में बेनिफिट्स हो गए आपका, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द कमिटमेंट टू पीसफुल यूज. हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं. इट मीन्स वी वांट टू गो टूवर्ड्स द पीसफुल साइड ऑफ इट, नॉट द स्ट्रेटेजिक वेपनाइजिंग साइड. ठीक है. वी डू नॉट वांट टू वेपनाइज द आउटर स्पेस. नेक्स्ट, इट क्लैरिफाइज द स्पेस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज. व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स. ये यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड. ठीक है. नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पूरा उसका दखल रहेगा. इवन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी परमिटेड लेवल पे रेगुलेटेड फॉर्म में और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइवेट सेक्टर विल आल्सो पार्टिसिपेट. नेक्स्ट, इट रीबिल्ड्स द कॉन्फिडेंस अमंग द नेशंस कि ठीक है, नाउ दे हैव कम अप विद a clear cut certain policy. Now we can think of investing with India and signing deals with India. ठीक है. Now it enhances the resource allocation and planning also. ठीक है. अभी तक रो के पैसा देते थे कि भाई हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, वाई शुड बी प्रोवाइड मनी टू यू, व्हाट हेल्प विल इट डू. ठीक है. तो वो जो एक था ना कि भाई पढ़ा लिखे ना होने वाला जो एटीट्यूड था ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई दे आर नॉट एबल टू सी द फोरकास्ट. ठीक है. फोरसाइटेडनेस नहीं है, वो चीज़ अब चली जाएगी क्योंकि और ट्रांसपेरेंट तरीके से मनी एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन होगा. ठीक है. इट्स लाइक कि साइंटिस्ट को अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना नहीं पड़ेगा in terms of towards the political leadership. Next, potential drawbacks of open space policy. There are negative sides to it also. इससे क्या होगा, increased competition and arms race risk. ऐसा ना हो जाए कि भाई सैटेलाइट वेपन्स बनाने लग गए, ये वो ऐसी चीज़ें शुरू हो गई. ठीक है. क्योंकि अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी कि भाई आपने ओपन दे दिया तो हाउ विल यू मॉनिटर. इसका क्लियर कट तरीका बनाओ, तभी इस चीज़ में आगे बढ़ो. नेक्स्ट, सिक्योरिटी कंसर्न कि भाई स्पेस वेपन्स ना बन जाए, सर्विलांस ना बढ़ जाए. ठीक है. जैसे कोलैबोरेशन हो रहा है तो इसमें स्पाई वाली टेंडेंसीज ना बढ़ जाए कि भाई इंडिया चाइना पार्टिसिपेट कर रहे हैं सपोज किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे,
तो वो उनका एक्चुअल इंटेंट है हमारे यहाँ सर्विलेंस करना, बट दे आर पार्टिसिपेटिंग विद अस यू नो उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे इन चीज़ों का हमें बहुत टेक केयर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेस डेब्री ना बना दें हम। इस पर एक यू नो पोटेंशियल क्वेश्चन इस बार बन सकता है कि स्पेस डेब्री पे पॉलिसी भी आई है और एक यू नो कोवेनेंट भी साइन हुआ है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रेगुलेशन। अगर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हुआ ऑन ग्राउंड, पेपर पे तो लिख दिया आपने, इफ इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, देन all the resources will be exploited in a you know एक in a not in a desired way, ठीक है। इसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं उल्टा। हायर कॉस्ट फॉर कंट्रीज एंड एंटिटीज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यू नो अब ठीक है आप कर दोगे पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी ले आया आपने, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया, बट इट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। तो वी हैव टू कीप अ बैलेंस कि भाई हमें फूड, हंगर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज द बेसिक नीड, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना होने लगे इस सेक्टर की वजह से। एंड ऑल्सो यू नो डेवलपिंग दिस सेक्टर विल लीड टू लॉस ऑफ द प्रीवियस जॉब्स अलॉट, बिकॉज इनोवेशन विल कम, न्यू टेक्नोलॉजीज विल कम एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड पीपल विल बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग these are the positive you know potential drawbacks of this particular open space policy, ठीक है। next are the advantages of India space policy। क्या क्या advantages हैं, सीधा सीधा मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, you all have the idea। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, to improve innovation and competition at the same time, ठीक है। next कैसे बढ़ेगा, इसका एग्जाम्पल you can always give a particular example to support this particular, जैसे अग्निकुल अभी हमने बात करी स्टार्टअप की, I'll give you the list of startups also in the end, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमारा अभी 2% ही ग्लोबल शेयर में यू नो अभी है, उसको और बढ़ाना है, इससे जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, इनोवेशन आएगा तो और प्रोडक्टिव होंगी चीज़ें, दैट्स वाई वी नीड दिस पॉलिसी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, गेनिंग एन एज इन द स्पेस टेक्नोलॉजीज। जब इनोवेशन होगा, नई से नई टेक्नोलॉजीज आएंगी एंड वी विल पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टुवर्ड द स्पेस सेक्टर, डेफिनेटली we will have a strategic advantage, we can you know sign various treaties with various governments, we will have an upper hand, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर वगैरह हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में ब्लैकमेल करता है कि भाई हम तुम्हें ये टेक्नोलॉजी देंगे, आप हमें ये दे दो, तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन ऑल्सो डू इन द फ्यूचर। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वाइट कॉलर जॉब्स काफ़ी क्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ दिस स्पेस सेक्टर एंड वेरी हाई पेइंग कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रहेगा ये। R&D विल इंक्रीज, तो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप ना, वैसे हमारे यहाँ काफ़ी टेक्नोक्रेट्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, बट यू नो दे हैव गॉन आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, एंड दे आर लीडिंग इट, दे हैव बिकम द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली। तो इफ दिस यू नो कल्चर इंक्रीजेज इन इंडिया, तो वी विल बी द ग्लोबल लीडर सम ऑफ द in some of the emerging cutting edge technologies, ठीक है। so this culture of innovation and should increase in India as much as possible, R&D. next industry standards, developing space standards and promoting activities will lead to you know 3-fold 4-fold increase होगा चीज़ों में, you know हर, क्योंकि पूरा सेक्टर इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी हमें और भी सेक्टर्स में बढ़ने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस पार्टिसिपेशन, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। स्पेस सेक्टर अभी जो है मोर और लेस इनफॉर्मल तरीके से काम करता है, तो दीज थिंग्स विल यू नो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक इट मोर स्टैंडर्डाइज्ड, जस्ट लाइक द अदर बिग स्पेस जायंट्स, you know space giant companies all over the world, we can standardize that process, ठीक है। तो और अच्छी से अच्छी इनोवेशन हमारे यहाँ आएगी। नेक्स्ट अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, सो एज वी आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग यू नो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और हमारा एम भी वही रहता है कि भाई मास लेवल पे करना है तो लो कॉस्ट ही करो, सो वी कैन यू नो और ज़्यादा फोकस के साथ उस चीज़ पे काम कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को ही उल्टा accessibility बढ़ेगी if we will you know work on such technologies on a large scale, on a mass scale. Streamlined regulations, simplifying with a single window clearance, जैसे हमने NSIL बनाया, ठीक है, तो या InSpace बनाया, तो ये सिंगल विंडो एंटिटी काम कर रही है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके अलग अलग चक्कर लगाना, रेड टेपिज्म इज यू नो गोइंग इन द बैक साइड, सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प
कमिंग आफ्टर कमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, और अगर ये अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस. एडवांटेजेस की तो बात हो गई. challenges in implementing the policy, there are no cons to this particular policy. ठीक है, कोई cons नहीं है, केवल challenges रहेंगे in implementing this policy. This is always a good initiative. इसका ऐसी चीज है, इसकी नेगेटिव साइड नहीं है. इस पॉलिसी के आने से अच्छा ही अच्छा होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सो चैलेंजेस इंप्लीमेंटिंग इंडिया स्पेस पॉलिसी. सबसे पहले सिक्योरिटी वर्सेस ग्रोथ बैलेंस, कि भाई हमें कितना ग्रो करना है और कितनी सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव ध्यान रखना है. ऐसा ना हो कि हम ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं. हाउ विल वी इंश्योर कि कोई प्राइवेट कंपनी डज नॉट वायलेट द नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड डज नॉट गो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ऑन पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. ऐसा ना करे. दिस इज अ बिग चैलेंज टू इंश्योर. ठीक है, तो एक बैलेंस हमें बना के रखना है कि प्राइवेट सेक्टर को कितना इन्वॉल्व करें, एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी ना हिंडर हो जाए. ठीक है, बिकॉज दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पोल्स. नेक्स्ट इज फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. ठीक है, इसके लिए फंडिंग कहाँ से लाओगे, हाउ विल कितना प्राइवेट सेक्टर दोगे, कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी. अगर गवर्नमेंट सिर्फ नेम सेक के लिए पॉलिसी पॉलिसी बोलती जा रही है और फंडिंग नहीं आ रही, तो दैट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, सो अट्रैक्टिंग एडुकेट फंडिंग फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सब ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. ठीक है, इवन नासा भी सफ़र करता है. कई प्रोजेक्ट्स उसके बंद हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग. यूएस में जब इतना होता है कि भाई जब 40% मार्केट शेयर उसका है, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ऑलवेज. नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल स्पेस कंपनीज, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. कि भाई हम compete करेंगे कैसे ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम खुद जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं, वी हैव बीन डिपेंडेंट ऑन सच कंपनीज फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फॉर बिल्डिंग स्मॉल थिंग्स. ओके, सो दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज. स्किल्ड वर्कफोर्स, भाई आप पॉलिसी ले आओ, कंपनीज आ गई, स्किल्ड वर्कफोर्स कहाँ से आएगा. अभी तो हमारे स्पेसिफिक स्पेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉलेजेस कितने हैं, कितनी एंटिटीज़ हैं, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेस सेक्टर में, एरोनॉटिकल सेक्टर में एक क्वालिटी एजुकेशन देते हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली है. तो दिस इज ऑलवेज बी अ बिग चैलेंज. और उसमें भी जो भी इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, ठीक है, उसको रिटेन रखना कि वो इंडिया में ही रुक के काम करे. ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट जो इसरो में काम करते हैं, दे वर्क फॉर द सेक ऑफ द सर्विस ऑफ द नेशन. ठीक है, अदरवाइज उनको दूसरे कंट्रीज में इतना पैकेज मिल रहा होता है, they would never want to stay अगर किसी को money is the consideration. तो retaining such global level talent is a big challenge in the space arena, जहाँ पे सब कुछ commercialize हो जाएगा. ठीक है, next is regulatory hurdles, creating an efficient and transparent regulatory framework. transparent रहे, at the same time efficient भी रहे, जल्दी काम करे, at the same time अटके ना रहे प्रोजेक्ट्स पैसे लेने के लिए. जो भी चीज़ें हो रही हैं एक प्रोफेशनल वे में, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह से काम करे एफिशिएंट वे में. ये एक बिग चैलेंज रहेगा. नेक्स्ट चैलेंज इज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ठीक है, हमारे पास है. ठीक है, मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, इसरो के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, सिमुलेशंस होती हैं, बट एवरी डे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. ठीक है, एवरी डे कंप्यूटेशन, सिमुलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर इवॉल्विंग सो एंड वेरी हाई, एट अ वेरी हाई स्केल. ठीक है, कोई मतलब कुछ ना कुछ, जैसे टेलीस्कोप है तो एक हाईएस्ट लेवल का था, उससे अगला वाला आ चुका है. ठीक है, कंप्यूटेशनल पावर है इंडिया का, तो एक सुपर कंप्यूटर है, तो उससे बेटर इट्स एवरीडे कंपटीशन. तो चाइना ने और फास्टर सुपर कंप्यूटर बना लिया है, रशिया और फास्ट बनाने वाला है, इजराइल और फास्ट बनाएगा. सो हाउ विल वी कम्पीट विद दीज थिंग्स. तो अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो चीज़ें हमारे लिए हमेशा चैलेंज बनी रहेगी. तो फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एट द सेम टाइम infrastructure that is needed to and all of that infrastructure is very capital intensive. So who will invest from private sector? So this will be a challenge in implementing. Lack of clear cut time frames, absence of specified timelines for critical steps. ठीक है, अभी के लिए इसमें ये इशू है कि इस पॉलिसी में कब तक क्या कर देंगे ये क्लियर नहीं लिखा है. अभी सिर्फ लिख दिया है कि कर देंगे. ठीक है, अगर आप क्लियर कट टाइमलाइन दे देते देन वी वुड हैव गॉट अ बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस. तो टाइम फ्रेम डिसाइड करके आप यू कैन कम अप विद द लेटर पॉलिसी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस,
ambiguous authority of in space, uncertainty surrounding in space position and legislative authority। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अलग से कोई कानून वानून लाए नहीं है ये लोग, ठीक है, तो इन स्पेस बेसिकली करेगी क्या, वो क्लियर का डिफाइन नहीं है फंक्शंस वगैरह, तो स्टैट्यूटरी लॉ लेके आ जाओ एंड एड्रेस दिस इनइक्वालिटी, एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट, कॉम्प्रहेंसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस, नीड फॉर क्लियर गाइडलाइंस ऑन एफडीआई, कितना है, कितना दे सकते हो, किस सेक्टर तक दोगे, कितना, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, व्हाट विल बी द नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, किस लेवल तक आप अप्लाई करोगे, प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी फॉरेन एंटिटीज को आप कितना अलाउ करोगे लाइसेंसिंग देने में, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है विद द एंटिटीज, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। ये सारी चीज़ें क्लियर कट और कॉम्प्रहेंसिव होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डाउटफुल बना रहेगा सारी कंपनीज को, दे विल अगेन लुक फॉर द सर्टेनिटीज। ठीक है, नाउ द वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस के बारे में हमने बात कर ली, वे फॉरवर्ड क्या हो और कैसे बेटर फ्रेमवर्क हम बनाएं इस पॉलिसी में। तो सबसे पहले है रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्लियर एंड एफिशिएंट रेगुलेशंस टू स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स एंड एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक तो सिक्योरिटी लेवल पे जो भी क्लियरेंसेस चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जल्दी से जल्दी हों, कम से कम क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड हों, ठीक है, और जो भी चीज़ें लेनी है अप्रूवल वगैरह, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, एक ही एंटिटी से डील करना पड़ रहा हो, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो मतलब ट्रांसपेरेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसा खाने पीने वाला सिस्टम ना हो, रेड टेपिज्म ना हो। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट फंडिंग, फंडिंग सपोर्ट थ्रू द इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स। ठीक है, अभी जैसे लेटेस्ट इस केस में कि फैसिलिटेट फंडिंग कैसे करेंगे हम, लेटेस्ट बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बिल। ठीक है, इफ़ इट गेट्स क्लियर्ड तो उसमें ये प्रपोजल है कि भाई 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें R&D में करना है इन द साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। ठीक है, तो उस फंडिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे, जिसमें से 36,000 प्राइवेट सेक्टर से निकलवाने का इंटेंट है। तो हाउ विल इट टेक प्लेस, इसका भी रेगुलेट प्रॉपर डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए। कल्टिवेट स्पेस इकोसिस्टम, हाउ टू फॉस्टर कोलैबोरेशन, मेंटरशिप एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स। ठीक है, हाउ टू स्पेस इकोसिस्टम के बारे में अभी जैसे आप बात करते हो कि भाई स्पेस एजेंसी या स्पेस के बारे में, लोगों के दिमाग में दो चार चीज़ें हैं, इसरो है, बैंगलोर है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, पुणे के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, तो इट इज़ इन पॉकेट्स। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत जो कुछ एक आध चैनल्स, नाटक, मूवीज़ या जो भी, बट ये इकोसिस्टम एज अ मतलब ऐसा डेवलप नहीं हुआ है। साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, R&D को उसमें कल्चर में लेके आना, मतलब अपना हमारे जो डेली स्टडी वाला जो फ्रेमवर्क है एकेडमिक्स में लेके आना, हाउ विल इट हैपन। ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच आप कैसे लेके आओगे, कैसे कोलैबोरेशन को मतलब वो करोगे, कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करोगे, जैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, उनकी हेल्प लेके, टेक्नोलॉजी इवेंट्स करवा के, तो ये हमें करना ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इनफॉर्मल या फॉर्मल लेवल पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट स्पेस इकोसिस्टम गेट्स कल्टिवेटेड काइंड ऑफ। अभी इट्स इन वेरी नेसेंट स्टेज। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन R&D, तो ये फैसिलिटेट फंडिंग एंड इन्वेस्ट इन R&D इज काइंड ऑफ कनेक्टेड। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट करके चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इस पर काम होना चाहिए। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेट एंड एंगेज द पब्लिक टू फॉस्टर इंटरेस्ट एंड इनोवेशन। ठीक है, जब लोग इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, देन डेफिनेटली मार्केट विल ऑल्सो थिंक ऑफ डेवलपिंग सच थिंग्स, जस्ट लाइक इंपॉर्टेंट एरिया लाइक स्पेस टूरिज्म। ठीक है, जैसे अभी वर्जिन एयरलाइंस का जो ग्रुप, वर्जिन ग्रुप था, या ब्लू मून, और भी ऐसी कंपनीज हैं जैसे आपका स्पेस एक्स, तो दे हैव स्टार्टेड स्पेस टूरिज्म थिंग्स। तो ऑल दीज हाउ कैन वी मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द जनरल मासेस। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लाना जिससे फंडिंग आए, कमाई हो। नेक्स्ट, अफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इनेक्ट स्पेस एक्टिविटीज़ बिल, जो भी पेंडिंग है हमने बात की, ठीक है, लैप्स हो गया था, वो लेके आओ, सो दैट क्लियर रेगुलेशंस आ जाएं, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। जितनी सर्टेनिटी आप लेके आओगे, ठीक है, उतना ही जल्दी प्राइवेट सेक्टर अडेप्ट करेगा विद द इवॉल्विंग थिंग्स। ठीक है, इवॉल्विंग डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट, रीसेंट डेवलपमेंट, आई टॉक अबाउट कि भाई सबसे रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने इन दिस स्पेस सेक्टर।
First is Defense Space Agency has been created to create weapons for space capabilities. तो that is a very foresightedness और strategic move कि भाई स्पेस वेपन सारे लोग बना रहे हैं तो हमें भी बनाना है, तो डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई गई है. नेक्स्ट डिफेंस स्पेस मिशन, डिफेंस एक्सपो 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, तो डिफेंस स्पेस मिशन इज देयर. नेक्स्ट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी टू रीच $3.2 बिलियन बाय 2025, ये गवर्नमेंट का टारगेट है. नेक्स्ट इज संवाद प्रोग्राम लॉन्च टू प्रमोट स्पेस रिसर्च अमंग यंग माइंड्स, तो एक तरह से स्पेस अवेयरनेस बढ़ाने का ये इनिशिएटिव है. So these are the recent developments. Now let's talk about the private sector startups so far. थोड़ा सा brief idea दूंगा मैं आपको, ये prelims perspective से ये news, ठीक है. You can also use that as a case study कि भाई कैसे कितना बढ़ रहा है private sector. तो सबसे पहले आ गया आपका कंपनी का नेम है Skyroot Aerospace. It is based in Hyderabad. It is making launch vehicle for small satellites. Small satellite launch vehicle जैसे SSLV उसने बनाया ना इसरो ने, उसी लाइंस पे ये इस फील्ड में काम करता है. एंड इट लॉन्च्ड द विक्रम-1 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड इंडियन रॉकेट सक्सेसफुली रीच स्पेस, ठीक है. तो इसका बनाया हुआ रॉकेट जो है अभी स्पेस में पहुंचा था. इट इज बेस्ड इन हैदराबाद, तो स्काई रूट. नेक्स्ट इज अग्निकुल कॉस्मोस बेस्ड इन चेन्नई, ठीक है. इट ऑल्सो मेक्स लॉन्च व्हीकल फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स. इसने भी अग्निलेट इंजन टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्टेड फुल 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, तो 3D प्रिंटिंग का यूज करके इसने बनाया था सैटेलाइट, ठीक है. ये दीज ऑल्सो कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द प्रीलिम्स बिकॉज ये इंडियन इनिशिएटिव्स हैं स्पेस सेक्टर में. तो विक्रम-1 देन अग्निलेट, तो ये पूछ सकता है कि इज इट द पार्ट ऑफ इसरो और नॉट, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ये बैंगलोर बेस्ड है. इट हैज मेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स एंड इट हैज कोलैबोरेटेड विद वेरियस कंपनीज to make electric propulsion technologies के इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे रॉकेट को स्पेस में भेजना है, तो उस टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है बेलाट्रिक्स. नेक्स्ट इज पिक्सल बैंगलोर, ठीक है. तो पिक्सल बैंगलोर बेस्ड है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स बना रहा है, ठीक है. इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था और उसके बाद अब नेक्स्ट प्लान इसका है 30 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करने का, छोटे छोटे 30 सैटेलाइट्स का कलेक्शन लॉन्च करने का. नेक्स्ट इज कावा स्पेस जो मुंबई बेस्ड है, ठीक है. इसने ग्राउंड स्टेशन पे कोलैबोरेशन किया था. इट डेवलप्ड द ट्रैकिंग ग्राउंड स्टेशन विद IIT बॉम्बे. नेक्स्ट स्काईलो, एक स्टार्टअप है, ये भी बैंगलोर बेस्ड है. तो लो कॉस्ट सैटेलाइट कनेक्टेड डिवाइसेस बनाता है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके. इट मेक्स लो कॉस्ट सैटेलाइट कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है. And it raised the funding of $103 million from SoftBank Group, जो जापान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है. नेक्स्ट सेटश्योर, इट इज ऑल्सो बैंगलोर बेस्ड. इट इज अ डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है. तो ये सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने वाला प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर सेटश्योर. सेटश्योर एग्री लॉन्च्ड क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग सर्विस फॉर फार्मर्स, तो किसानों के लिए कि आपकी कितनी क्रॉप होगी इस पर्टिकुलर सीजन में या वो, ये प्रेडिक्ट करता है बाय यूजिंग सैटेलाइट एंड डेटा एनालिटिक्स. नेक्स्ट ध्रुवा स्पेस, ठीक है. इट इज सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, ठीक है. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे स्पेस काम कर रहा है ध्रुवा स्पेस. and it provides aviation communication partnership. It signed MOU for satellite based communication services to the aviation industry, ठीक है. तो जो भी हमारी एयरलाइन सर्विसेज हैं उन पे उनको कम्युनिकेशन करने के लिए ये स्टार्टअप है. इट वर्क्स इन दिस सेक्टर. नेक्स्ट we'll talk about the important missions that have been completed and are proposed by the ISRO. तो सबसे पहले तो लूनर मिशंस, कंप्लीटेड मिशंस हैं तीनों. लूनर मतलब चांद पे गए हैं, चंद्रयान 1, 2 and 3. लेटेस्ट चंद्रयान 3 अभी चांद की सतह पर, सरफेस ऑफ द मून पे नहीं पहुंचा है, बट बाकी दो. फर्स्ट वाज लॉन्च्ड इन 2008 and it worked till 2009. Then next was launched after 10 years in July 2019 and its orbiter is functional right now. The lander crashed into the moon's surface due to the loss of control caused by a software glitch during the final phase of the descent. तो इसका ऑर्बिटर अभी भी फंक्शनल है, यानी अभी भी चांद की मतलब के अराउंड चक्कर लगा रहा है, बट जो पार्ट लैंड हुआ था मून पे इट गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर टेक्निकल ग्लिचेस. नेक्स्ट Chandrayaan 3 is about to reach the moon. It has been successfully launched in this 14th July 2023
and this is the image. ठीक है, you can refer to it in the detailed in the PPT. We'll share this on Telegram. तो आप इसको पूरा एक तरह से ट्रेस कर लेना, how ISRO has evolved its technology, कैसे कैसे उसकी जर्नी रही है. तो it is talking about this only. We will discuss here about the missions only, brief about the missions only. Now let's talk about the interplanetary missions. ठीक है, दूसरे प्लैनेट पे जाने वाले मिशंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो मार्स ऑर्बिटर मिशन इसने लॉन्च किया था इन 2013 एंड इट एंडेड ऑन 2 अक्टूबर 2022. ठीक है, उसने उसका ऑर्बिटर लैंडर दोनों गए थे एंड इट फेल्ड ऑन एंड इट काइंड ऑफ कंप्लीटेड इट साइकिल ऑन 2 अक्टूबर 2022. नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो सैटेलाइट लॉन्च किया था हमने, एस्ट्रोसेट. इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड इट कंप्लीटेड इट्स वर्क इन सितंबर 2022. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इंटरप्लैनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमी मिशंस. नेक्स्ट देख लेते हैं अपकमिंग मिशंस. ठीक है, ये लेटेस्ट वाले हैं सारे, कुछ कुछ इसमें से लॉन्च होने वाले हैं, कुछ स्टेज में चल रहे हैं, थोड़ा कुछ कुछ लेट हुए हैं. तो डोंट गो ऑन द डेट्स, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. फर्स्ट इज आदित्य L1. दिस इज रिगार्डिंग सन, टू स्टडी द सन, सोलर ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने वाले हैं अगस्त के आसपास. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट. दिस विल बी लॉन्च्ड इन 2023. स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है. ठीक है, स्पेस में अलग अलग एंटिटीज को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट है. नेक्स्ट इज गगनयान 1. ठीक है, ये अनक्रूड स्पेस फ्लाइट टेस्ट. ठीक है, तो अभी इसमें कोई इंसान नहीं जाएगा. दिस विल बी लॉन्च्ड बाय मिड 2023 विदाउट द क्रू, विदाउट अ ह्यूमन. वी विल लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट. नेक्स्ट इसका फेज रहेगा गगनयान 2 23-24 के बीच में कहीं अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट, सेकेंड फ्लाइट टेस्ट करेंगे. देन निसार, दिस पर्टिकुलर मिशन विल बी लॉन्च्ड इन जनवरी 2024. नेक्स्ट शुक्रयान यानी वीनस मिशन, वीनस का ऑर्बिटर, वीनस के अराउंड ऑर्बिट करके उसको एनालाइज करने के लिए ये मिशन रहेगा. इन दिसंबर 24 इट इज शेड्यूल्ड. देन मंगलयान 2 mission for the Mars. Again it is a Mars orbiter. ऑर्बिटर एंड लैंडर में सीधा डिफरेंस है. ऑर्बिटर मतलब उसके चक्कर लगाता रहेगा एंड लैंडर विल लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. नेक्स्ट गगनयान 3 जो 2025 में लॉन्च होगा. इट विल बी द क्रूड स्पेसक्राफ्ट, मतलब उसमें इंसान जाएगा, 2 और 3 का क्रू जाएगा, जो भी उसकी अभी ट्रेनिंग स्टेज में चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LPEM. ठीक है, इसमें मून की सतह पे लैंडर और रोवर दोनों जाएंगे. इट विल बी मोर एडवांस्ड इन नेचर. नेक्स्ट इज चंद्रयान 5. ये 25 से 30 के बीच में हमने प्रपोज रखा है. इसमें रोटरी ड्रिलिंग सिस्टम के साथ हम लैंडर लॉन्च करने का हमने प्लान किया है. एस्ट्रोसैट 2 अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है, बट इट विल बी अ स्पेस टेलीस्कोप. जैसे एस्ट्रोसैट 1 जब एक्सपायर हो जाएगा, उसका काम करना बंद कर देगा, देन एस्ट्रोसैट 2 विल बी लॉन्च्ड टू रिप्लेस इट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मिशंस. फाइनल वर्ड along with the policy. ठीक है, so new space policy marks a crucial step towards the developing a commercial space ecosystem in India. ठीक है, सीधी बात है कि commercial space ecosystem in India लेके आना है and this particular step is in the right direction. ठीक है. However, there are some challenges. To fully realize its potential, clear directives, legislative support and timely implementation are necessary. तीनों चीज़ें. ठीक है, आप लेके आ जाओ, लिख के चीज़ें नहीं होंगी. We will have to be very clear cut in our directions. क्लियर कट डिफाइंड टाइमलाइंस होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी एकदम क्लियर कट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम बैक्ड बाय द लॉ. ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जीक्यूटिव रैंडम एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे चीज़ें नहीं चलेंगी. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली एंगेज विद द प्राइवेट स्टार्टअप्स एंड एड्रेस द चैलेंजेस टू फॉस्टर अ थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल स्पेस इंडस्ट्री. ठीक है, तो इंडिया इज इन नेसेंट स्टेज. ठीक है, it has immense potential, we need to tap it, but the intent should be good. ठीक है, and to realize all such principles जो भी apprehensions हैं उनको भी address करके then we should proceed towards with the sustainability in mind. ठीक है, so this is all about today's India space policy issue. I hope you liked the video. Please tell us your feedback in the comment section. You can also
suggest us the important topics which you want us to cover. Okay, and this following topic had all the information regarding prelims and mains related aspects. ठीक है, I ended with a conclusion also. If you need any other issue that needs to be covered, please do comment and help us guide. So stay tuned for more videos. Like, share and subscribe, and stay tuned with Tarun IAS. Thank you and have a nice day.